Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stars of Nas. I'm your host सना जफर. हमेशा की तरह आज भी हम आपको मिलवाएंगे नस के एक ब्रिलियंट ग्रेजुएट से. आज हमें एक बहुत स्पेशल स्टार ने ज्वाइन किया है फ्रॉम ह्यूस्टन. हमारे साथ हैं मिस्टर शहराज बशीर. अस्सलाम वालेकुम सर. Thank you very much for joining us. Walaikum salam Sana. Thank you very much for having me. Appreciate that. सर शहराज ने अपनी डिग्री कंप्लीट की इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैक इन 1997 फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स. इस वक्त वो सीनियर एंगेजमेंट मैनेजर हैं एट चाइवान. आइए इनसे मिलते हैं और इसके बीच की सारी स्टोरी जानते हैं. सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला एंड यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल विद दिस चैनल ऑफ आवर्स, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. No, thank you very much for doing this all. This is great. I think it will help a lot of Nustians get into the limelight and what they have been doing. So thank you very much again. Thank you for the appreciation, sir. सर आप बड़े पॉपुलर हैं माशाल्लाह. एवरीबडी टॉक्स अबाउट यू. एमसीएस में स्पेशली आप किसी से भी जिक्र करें तो सबसे पहले आपका नाम लेते हैं. तो आज हम उसका भी थोड़ा सा सीक्रेट जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी पॉपुलैरिटी, वो भी फॉर ऑल द राइट रीजंस, ये कैसे होता है. इसकी तरफ आएंगे सर, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप अपनी प्लीज प्रोफेशनल जर्नी शेयर कीजिएगा. नस से आपने ग्रेजुएट किया टिल टुडे, व्हाटएवर हैपेंड. I graduated from second batch of NUST for MCS in 97. It was a very early days of NUST, so it was like kind of like an experiment, but we were there, so we graduated. And I worked 3 years or so in Pakistan Air Force. There's a facility in near Wakant on F-7P aircraft. So that was my initial 3 years. Then we got opportunity, many Nustians got opportunity at G transportation system, the freight locomotives. The Pakistan Railway also has that. So that was a scholarship plus master's study. So I came to Erie, Pennsylvania in 2000. We were there for 2 years. And then after graduation, most of us from that batch went to G Healthcare. So I worked roughly 10 years or so in medical devices and imaging products, healthcare. You see those in hospitals or any medical show. I was a program manager, lead system designer, etc. And then I got a little bit bored with healthcare and moved to the Houston in 2012, working in oil and gas. And 3-4 years I worked in oil and gas. Then oil and gas crashed. Oil was very bad. In 2016, I moved to then digital transformation side of consultancy. That's what my current role is for roughly 3 or 4 years now. So working right now at Chaiwan as a senior engagement manager, responsible for delivering large scale projects to transform an organization, bring them to the modern world as far as the technology, the cloud, etc. is concerned. Thank you very much for sharing such an interesting journey, sir. और आई कैन सी कि इसमें कुछ टर्न्स ऐसे भी हैं विच वर प्रोबेबली बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल, और आपको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ी, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी. हाइंडसाइट में तो शायद इजी लगता हो कहना कि हाँ इट डिडंट वर्क और आई डिडंट लाइक इट एंड आई मूव टू अदर फील्ड, बट आई कैन इमेजिन इट मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग. Did you have that kind of flexibility in you? Always had that degree, that flexibility? Yeah, you learned it over time. I would say I learned it over time, but I was always from the very beginning open to exploring anything new. So I never wanted myself to be put in a certain box, right? As things come, as things change. So you mentioned, we mentioned Air Force, right? And then opportunity came to work in G Transportation. So same questions came, oh, why you are leaving the stay as a government job? I said, no, I don't want to go out and see what's out there. Then transportation was doing great, but 9/11 happened, right? There you go. Being from Pakistan and Muslim country, we had a different challenge at that time. We were very, very terrible. And I was fairly young, like mid-20s, right? But then again, rather than getting frustrated, we pushed more hard and went into G Healthcare, right? Within healthcare, I changed 3 times from patient monitors to the imaging side and then the service side. And then I got bored and then I moved toward the software side and oil and gas, which was completely different field and different city. And then when oil crashed, Houston is hub of oil, right? I mean, once oil crashes, entire city pretty gets jobless, right? And then rather than again getting frustrated, I moved toward the digital transformation side, which is my current role. So also you will see a lot discussions around whether you look at some modern thinkers like at Davos, etc. They will use these words called
agility or nimbleness or flexibility. These are to me essential nowadays for anyone to be succeed. Those days that you graduate and have one job are over. And if people don't are flexible, they would be out of the work and they would be struggling, right? So you have to be open to change, and what we call it continuous learning. Learn pretty much every day. Wherever you don't need, you don't know, ask for help, and then continue to align yourself with the new fields, and that way you are relevant. It's true for both non-profit, where I also work, and also for profit, the commercial side and everything, and also at the personal level to the family. Families go through the same challenges, and then you have to adjust to the news. Like my wife adjusted to the new city, and it went up very good, because Houston has more, I would say, desi culture. So it's more balanced, I would say. You get the best of America and best of Pakistan as well. So thank you for sharing an insightful answer, and I think बहुत ज़्यादा इसमें learning points हैं हमारे लिए, कितनी flexibility, कितनी agility होना बहुत ज़रूरी। मैं आपके इस passion के बारे में I'm very interested to know about it. The passion of helping others, जो आपने अपनी journey बनाई, जिसमें आपको direction change करनी पड़ी है with your personal life, with your professional life, you have to make a lot of adjustments. तो सबके साथ-साथ where does that fit in? The passion for helping others, and how did you manage to take it all along? और अभी तक माशाल्लाह आप इतने लोगों की डेली लेवल पे हेल्प कर रहे हैं, प्लीज उसके बारे में डिटेल बताइएगा। Listen, I think when you're growing up, when you look back, I'm from inner city Rawalpindi. I'm from Kashmir, but it's the same thing. Kashmir and the inner city Rawalpindi context is same. You notice that lots of people were helping you, right? It's like at that time you're a kid, you don't know, right? For example, if I needed a book, there would always be someone to loan you a book, right? I never had a problem to find any book when I was like a super young, right? Early teens or something. If you needed a transportation, there would be bike, or there would be someone to give you a ride somewhere. So there was a shared resource capability. I'm talking inner city at that time. So I always look at why people were helping you. I mean, they don't need to, right? They can be cutthroat. They say, go to hell, and then I don't want to do that. So you remember then those things. And then as you come a little bit more, went to the Sarsiyat College. One of my friend used to give me a ride on his bicycle. It's hard to bike with another person on it, right? And then went to the MCSM. Many people helped out of the way to make sure you graduate. And then once you're looking for the job, there was, forgetting the officer's name, he got me this first Air Force job, on and on. So then you realize that, okay, I got it here, and without that, I won't be here. Plain simple. So then you want to give back. And if you study any leaders, they have this fundamental belief to give back to the society. It brings the inequality to the equal level to some extent. A little bit what you can do from that. And that's what I think keeps me motivated. And also it keeps you focused, right? Otherwise you get a little bit distracted from all this materialism, and you constantly ask, what's my purpose, all that, etc. So if you keep giving back, and it can be time, it can be money, it can be coaching, or it can be just plain listening, right? There's various ways to help depending upon whatever person's capacity is. So that's what I think I kept my mission, and not just me, many other people are part of that as well. तो सर कुछ बताइएगा, आप बहुत से फंड्स के पार्ट हैं, आप बहुत एक्टिवली हेल्प कर रहे हैं लोगों की. हाउ डज दैट हैपन? So way back, I think 2003 or 4, my course, which is DCC5, class of 97, we just started. These were early days. We were like a 54 members. Madhya Bisharat was part of it. Fadil came later, but Sir Mansoor, Ammar, Zulkarnain, Taha, those were earlier, at least the leaders. So we just decided, okay, let's raise a scholarship fund, and then we'll use that money to help the students who couldn't afford the tuition. So we realized by looking right and left that many students are from very humble background, they cannot afford. So we started with that meager, I think it was $4,000 or so. It's way back now, 2003. And then again, we started building on that. And then eventually we did very big fundraisings for the support of the needy student. Then Maria Kadri and Rubab came into this NEED initiative. We become part of the NEED initiative, where we donated a lot of money. And then being part of Nustian USA,
when I was president for last 3 years. SN is since July. So we started raising more dollars more systematically. So we are creating seats, permanent seats. Every 4 year, one student will get sponsored at $20,000 a piece. So I think I don't know the exact number. I don't want to tell, I misspoke, but there would be some number of seats this year. And we collect the zakat as well, because zakat is also distributed to the people who are eligible, to the Nastians as well. So now it's become as more of a formal, systematic process to do that. And then we have ad hoc requests, as you must be seeing on the Facebook. Last few weeks, I saw 3 or 4 or 5 at least from the NUST. So that's Maria is looking for more additional funding. So we now help try to do that. In fact, late night, I was looking at another one. 7 लाख और सो एक लड़के को चाहिए थे, यंगस्टर है, पढ़ रहा, तो we just working on it. Before this interview, that was what I was working on it. So we will be able to arrange that and make sure. Again, the point is due to just small amount of money, no one should be expelled from the college, because उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट. एक तो आना वैसे ही मसला होता है कॉलेज में, राइट, ग्रेजुएट करके नस्ट में, क्योंकि these are all qualified people. और दूसरा, अगर वो बच्चा है बच्ची चले जाए तो वो तो डन, ही इज डन फॉर लाइफ, राइट, उसको कुछ नहीं होगा. फिर उसकी फैमिली, आई मीन हम्बल बैकग्राउंड, 40,000 रुपए कमा रहे हैं उनके पेरेंट्स एट मैक्स, 60,000 जो हमने थ्रेशोल्ड रखा है, 80,000, और उसका कुछ भी नहीं कर सकते. आई थिंक दिस इज अ ईयरली इनकम, इट्स नॉट लाइक अ monthly. So we just try to give back using our network. And as we are aging, 25 years ho gaye alumni ko, to now people have donated bigger amounts too, and eventually we want to become total need blind, just like Harvard IK. Aap aa jao and it will be covered, and we don't have to raise money, it's already done. So that's the ultimate goal. We want to do that. Mashallah. So that's very good to know. And I don't think most of the Nastians even know about it, that how it all happens. I'm sure कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो help करना चाहेंगे, जितनी अभी already किसी भी capacity में करते हैं, उसके साथ ज़्यादा करना चाहेंगे. तो I'm really hopeful कि आपका ये interview देख के people get to learn more about it. एक और एग्जांपल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ. अभी एक लड़का, cannot name them, सिंध से है, 38,000 रुपए उसको सिर्फ चाहिए थे, और 38 को छोड़ें, उसको 8,000 रुपए चाहिए थे जस्ट टू पे हिज हॉस्टल फी. 8,000 रुपए, which is like nothing, right? For people like us, it's just like we drink a coffee for that money. So अब उसका GPA 3.72 के पास GPA है. उसकी छोटी बहन थी बेचारी, उसकी बड़ी हमने हेल्प करने की कोशिश की, वो फौत होगी. फिर अभी रिसेंटली उसकी माँ फौत होगी, ठीक है, अब अकेले वो उसके फादर हैं और 2 छोटे बहन भाई हैं. तो बंदा कहता है कि व्हाई नॉट, राइट? आई मीन that's what the motivation is, why not? And these kind of fundings I don't even do anymore. We have youngsters like Arslan Azad, Abdur Rahman, Shoaib, there are many. तो उनको हम कहते हैं कि now you should learn as well. So we are trying to use what we call train the trainer model. We tell them how it is done ताकि सस्टेनेबल हो जाए, क्योंकि हर काम हर चीज हम खुद नहीं कर सकते, मैं या बाकी, क्योंकि too much need बहुत ज्यादा है. तो we just train people and then I think it's getting better and better. अभी मारिया थिंक बोल रही थी कि 35 के करीब स्टूडेंट्स को एडिशनल हेल्प चाहिए, उसके पास फंड्स अभी नहीं है. तो अभी लाइक वी आर टॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड लेट नाइट, मारिया कादरी की बात कर रहा हूँ. तो इस इंटरव्यू की वसात होपफुली जो पीपल डोनेट नहीं किया वो कर देंगे. ऑनेस्टली ज्यादा डोनेट नहीं करते, नॉट दैट दे आर हार्टलेस, इट्स जस्ट दैट मे बी दे डोंट नो, एज यू सेड. So I would say 500 बंदों ने भी नहीं टोटल डोनेट किया आउट ऑफ 40,000, मे बी 1,000 एट मैक्स सिंस 2000. 40,000 के करीब हमारे मेंबर्स हैं टोटल. तो उसमें से इफ आई रफली डू बैक ऑफ नैपकिन कैलकुलेशन, मे बी 1,000 बंदों ने कभी डोनेट किया होगा टू डेट. तो वी हैव पोटेंशियल, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डू लॉट ऑफ मैसेजिंग, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी, यूजुअल चीजें सारी आ जाती हैं. पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि नस्ट कैसे गरीब है, फॉर एग्जांपल, राइट? They think a Nust has infinite money. It doesn't work like that. There's always money for this and this. So hopefully people come forward and donate more. Thank you for that. Yeah. Thank you very much, and I'm very very pleased to know कि चाहे कम लोग कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, you guys are doing it. You are giving your best to it. और इसका impact इतना ज्यादा है. It's not just MCS specific, या जैसे आपने मैम मारिया की बात की, तो it's not NBS specific. It's for whole of Nust, and people कोई अगर हॉस्टल फीस नहीं दे रहा, कोई ट्यूशन फी नहीं दे पा रहा, तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. आई होप पीपल गेट टू लर्न अबाउट इट. और आपने जब मेंशन किया तो आई जस्ट रिमेंबर्ड, आई वाज
लाफिंग ऑन इट के आई रिमेम्बर मैडम मारिया कादरी ने एक दफा शेयर भी किया था फेसबुक पे कि हाउ शी हैज टू गो एंड एक्सप्लेन पीपल कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड. कई Yeah. दफा इवन इफ दे मीन वेल आई वुड से दे डोंट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस और उनको यही लगता है कि लाइक यू सेड कि नर्स के पास पैसा नहीं है, वो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको किसी और से चाहिए. हाँ, तो उसमें फिर हमने काफी मारिया की एटलीस्ट नस्टिन यूएसए की कॉन्टेक्स्ट में काफी डिटेल्स मांगी कि किसको पैसे जा रहे हैं, किस लड़की को किस लड़के को जा रहे हैं, उसकी वीडियो दें, उससे कंसेंट लें, उस सब चेक करें कि इज शी और ही कीपिंग द जीपीए, डज ही और शी नीड मेंटरशिप, बिकॉज ये लोग सारे वी कॉल देम वल्नरेबल पीपल, राइट. जैसे मैं एक टाइम होता है यू आर वल्नरेबल, उस वक्त अगर सोसाइटी आपको ना करे तो यू कैन गो ऑन द वेरी नेगेटिव साइड, राइट. ऑल द थिंग्स वी हियर, द बैड थिंग्स इन सोसाइटी, द रूट कॉज ऑफ दैट इज दैट people just perceive that no one is there to help me, so we just provide like some sort of help, whether it's money, counseling or, तो वो फिर हमने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बना दिए काफी, लेकिन स्टिल वी हैव टू एक्सप्लेन अ लॉट कि ये क्या है, हाउ इट इज डन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, nitty-gritty. So I think in defense of people who ask for these details, unfortunately ऐसा है भी तो कि कहीं ना कहीं लोग, not just NAS specific, पाकिस्तान में भी आप हेल्प करने जाएं तो कई दफा लोग गलत एडवांटेज भी उठा रहे होते हैं. इसलिए people want to be sure कि if we are spending money somewhere तो it reaches the needy. It's not that they don't want to spend. उनको सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से जैसे आप लोग उनके लिए पॉसिबल कर रहे हैं, तो I'm really hopeful कि इंशाल्लाह इसके साथ साथ जरा ज्यादा जज्बा हमें हर तरफ देखने को मिलेगा और इससे बहुत सर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी सक्सेस के बारे में, जो आई थिंक मैं बाकी सब लोगों से भी कर रही हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन में टेंजिबिलिटी शायद बहुत कम होगी. आप क्या समझते हैं, है क्या सक्सेस? आई थिंक सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है. शुरू में तो ऑनेस्टली वो क्लासिकल सोशल क्लास का डायलेमा है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, राइट. जिस सोशल क्लास में से हम आते हैं या मेरे एल्डर्स आए थे, आपके भी, मतलब टिपिकल सारे, वी वर नॉट किंग्स, राइट. पैसे बिल्कुल होते भी नहीं थे, तो एक दो जनरेशन तो लगती हैं जस्ट टू गेट स्टेबल, राइट. जस्ट गेट अ डिसेंट घर, गाड़ी और बच्चे वगैरह स्कूल में जाना और जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं. तो वो पहले मेरी वो थी सबसे 90s में और अर्ली 2000 में के जो फैमिली को जो बेसिक लाइबिलिटीज होती, शादियां, घर और वो जो बेसिक होता है, तो दैट्स फर्स्ट चेक मार के इससे तो जान छुड़ाए ना, क्योंकि अगर उससे नहीं छुड़ाएंगे तो देन यू डोंट हैव फोकस टू डू एनीथिंग एल्स. I mean, some people do these are, but not everyone is like that. तो एक तो वो थी कि चलो अपनी फैमिली को स्टेबल कर दिया, बहनों वगैरह की शादियां होगी और खुद भी हो गया सब कुछ. फिर जो आप कहते हैं कि अच्छा अब क्या करना है मैंने, तो फिर देन सक्सेस की डेफिनेशन की जो पहले हम बात कर रहे थे कि दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दो, क्योंकि देन देयर इज नथिंग लेफ्ट, राइट. हमारी क्या प्रॉब्लम है, कॉफी कौन सी पीनी है, ठीक है, कपड़े कौन से पहनने हैं, गाड़ी कौन सी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. आई मीन वो भी तंग पड़ जाते हैं आप, ठीक है. आप भी रह रही हैं बाहर, हम भी रह रहे हैं, एक दफा आपने चला ली गाड़ी लेक्सस या मर्सिडीज जो भी है, फिर कहते हैं क्या करना है, तो देन फिर आपका जो फोकस है वापस उधर ही चला जाता है. अच्छा यार, ये जो वल्नरेबल लोग हैं इनको हेल्प की जाए, वेदर पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जहां भी है, क्योंकि इक्वालिटी, एक दफा मैं पहले भी कुछ लोगों से मैं कह रहा था कि अगर इनक्वालिटी जो बढ़ जाती है ना, इट कैन कॉज सिविल अनरेस्ट. लोगों को अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि दे कैन कम आफ्टर यू और मी कि भाई ऑलराइट वी हैव नथिंग टू लूज, देयर इज अ कार देयर, जस्ट स्टील दैट. तो ठीक है, इट्स बैड, वी आर नॉट सेइंग दैट शुड बी एनकरेज, बट उसकी जो अंडरलाइंग रूट कॉजेज यही होते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है. मैं अगर अपने आप को भी कंपेयर करूं, जो मेरे साथ ग्रो अप हुए थे इनर सिटी में, इट्स लाइक जमीन आसमान का फर्क है, राइट. जस्ट प्योरली अगर आप एसेट्स की बात करें, तो उसमें फिर हम भी चाहते हैं कि वी ट्राई टू हेल्प दोज पीपल, एंड यू कैन नॉट जस्ट डोल आउट कैश, बिकॉज़ यू डोंट वांट टू एनकरेज दैट बिहेवियर के फ्री लोडर्स का है. वी जस्ट फोकस ऑन एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में अगर एक बच्चा या बच्ची एक खानदान से आ जाए तो पूरा खानदान ऊपर उठ जाता है. That's how we look at it. क्योंकि पाकिस्तान चलो 200 मिलियन है, लेकिन अगर आप फैमिलीज देखें तो फैमिलीज आर नॉट दैट मेनी. फैमिलीज वुड बी 8 का खानदान, यू कैन डिवाइड बाय 8, और उसमें से जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं दे वुड बी वेरी वेरी स्मॉल. सो यू आर पिकिंग वन, लेट्स से फ्रॉम विलेज ए, वो पूरा विलेज जो है ना ऊपर उठना शुरू होता है कि वो कहते हैं कि ओ उसका बच्चा बच्ची चले गए स्कूल, तुम भी जा सकते हो. तो दिस इज हाउ इट गेट्स डन टू डू दैट. सर बिल्कुल, आई थिंक मैं बहुत एग्री करूंगी आपकी बात से. जो मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन की टेंजिबिलिटी कम है, क्योंकि जब टेंजिबल सक्सेस होता है, लाइक यू सेड, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिफरेंस है. शॉर्ट टर्म आपको यही लगता है ये डिग्री हो जाए, ये जॉब मिल जाए, ऐसे सेटल हो जाए, लाइक यू मेंशन ये गाड़ी ले लें.
ये सारी चीजें बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली हैं कि आप चाहते हैं ये हो एंड देन यू आर हैप्पी फॉर फ्यू डेज एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू। आई थिंक ये जो आप जिस पैशन के साथ ये इतना नेक काम कर रहे हैं, दिस इज समथिंग जो आपको लॉन्गर रन में कोई पीस दे सकता है। और स्पेशली जो आपने बात की कि डिस्पैरिटी है, इतना ज्यादा फर्क है लोगों की सोशल क्लास में, इकोनॉमिक क्लास में, उसको भी ओवरकम करने का शायद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है उन सब की जो किसी ना किसी तरह ज्यादा है। टिपिकली लोग हमें भी यही कहते हैं ना कि नॉट पिकिंग ऑन एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, वेदर इट्स नवाज शरीफ और खान साहब या जो भी हैं, they cannot do everything. Is this too much? They have money, they cannot do that. तो जो सोसाइटी नीचे से अपने सर्कल्स में या अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हम कहते हैं, जहाँ आपका कोर इन्फ्लुएंस है, जैसे मेरा भी और मेरे पीएस, उनका इन्फ्लुएंस नस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, वेदर लाइक इट और नॉट देयर इज, राइट, उधर हम बहुत काम कर सकते हैं, वी कैन स्केल इट अप। लाइक अभी ये मैंने 7 लाख मांगे हैं, मुझे कोई 3 मिनट नहीं लगे, इट गॉट कवर्ड हार्डली। आई पुट इट द रिक्वेस्ट एंड इधर से आगे। अब वो मसला है कि ट्रांसफर कैसे करना, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो पॉइंट ये है कि दिस इज वेयर यू वांट टू फोकस इवेंचुअली, गिव बैक, ताकि वो इनइक्वालिटी नीचे होती रहे और जो लोग जिनकी हम हेल्प करते हैं दे बिकम वेरी सक्सेसफुल एंड आल्सो दे स्टार्ट पेइंग फॉरवर्ड, राइट। उनके अंदर एक वो चला जाता है, इन बिल्ट इन फोकस बन जाता है कि अच्छा किसी ने मेरी हेल्प की थी एंड दे डिड नॉट हेल्प टू हेल्प मी, राइट, ना मेरे वो रिश्तेदार हैं या ब्ला ब्ला, लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं विच दे बिकम वेरी क्विकली, राइट। पहली जॉब में ही 2 लाख 1.5 लाख मिल जाता है, किसी को भी पाकिस्तान में इंजीनियर को मिल जाता है, और बाहर हैं तो 70-80 हज़ार डॉलर वैसे ही मिल जाता है। तो उनके पास जो डिस्क्रिशनरी इनकम होती है, दे स्टार्ट गिविंग बैक ईदर टू अस और via zakat or via whatever, और अगर पैसे नहीं देने तो एटलीस्ट दे स्टार्ट, आई मीन वी आर सीइंग इट अक्रॉस द बोर्ड। वो पूरी जो है ना कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवेंचुअली सोसाइटी और पाकिस्तान सारे ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। तो या you're absolutely राइट। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, ये थोड़ी सी हेल्प में थी, दूसरी पर्सनल साइड पर है कि जो कंटिन्यूस लर्निंग, एक मैं बड़ा प्रॉब्लम देख रहा हूँ यंगस्टर में कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, राइट, दे जस्ट वांट सम शॉर्टकट, राइट, दैट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू pay your dues by continuously learning, studying, be very curious. वेस्ट में चाइना है, जापान है, पाकिस्तान खुद है, मिडल ईस्ट है, 1000 जगह हैं जहाँ नॉलेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है विच यू कैन कंज्यूम। जब मैं छोटा था तो आई यूज्ड टू गो टू, मेरे पास सब लाइब्रेरीज की मेंबरशिप थी, तो दैट्स वेयर आई यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम जस्ट रीडिंग, राइट, बिकॉज और तो कुछ था नहीं। आई मीन एक तो पैसे नहीं होते थे और दूसरा और बाहर गर्मी है, तो मैंने कहा एटलीस्ट देयर एयर कंडीशन होता है अंदर, यू कैन स्टडी। So people have to get into this habit of getting knowledge as much as they can, which is another general definition of success. It doesn't need to be engineering per se. It's just that you need to have knowledge, because then you are able to solve any problem. Otherwise, आप बस बैठ के लड़ते ही रहेंगे. You cannot solve any problems. एग्जैक्टली। और जैसे आपने मेंशन किया कि बचपन में आपके पास ज्यादा आपको अच्छी एक्टिविटी ये लगी कि आप अपना टाइम स्पेंड करें बुक्स में, और आप कहते हैं कि उस वक्त और कुछ नहीं था, तो आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग कि उस वक्त स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा टाइम वो कंज्यूम कर रहे हैं। और इस पे तो खैर वी कैन हैव अनदर होल प्रोग्राम, बट आई पर्सनली थिंक कि सबसे बड़ा डिलेमा ये है पाकिस्तान का भी इस वक्त कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है बट स्मार्टफोन एंड वाईफाई है, which is kind of creating a lot of chaos। और बहुत सीधे रास्ते पे चलने वाले बच्चे भी इस तरह डेविएट होते हैं जो एट द एंड इकोनॉमी भी सफर कर रही है, हमारा कंट्री ओवरऑल सफर कर रहा है। बट अगेन टुडेज टॉपिक इज यू, और हम आपकी बात ही करेंगे। चलिए सर, थोड़ा सा एमसीएस की तरफ आते हैं। आपका टाइम कैसा था एमसीएस में? I think MCS के टाइम, I'm from military family, मेरे फादर भी आर्मी में हैं, और being a कश्मीर I know military well, तो मुझे तो इतना वो डिफिकल्ट नहीं लगा। और दूसरा आप थोड़ा सा वो इनर सिटी से हैं तो ये वैसे ही थोड़े से डीट हो जाते हैं आप, यू अंडरस्टैंड स्ट्रीट्स, तो वो जो टिपिकल आपका रगड़ा शगड़ा होता है मिलिट्री का या यूनिफॉर्म पहनना, मुझे नहीं। बाकी लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, स्पेशली जो सिटी से आए थे, कराची से, they thought कि it would be civil institute, it was not, but overall it was a positive experience। मैंने ये नहीं देखा कि कोई आपको डिग्रेड कर रहा है कि तुम इस छोटी सिटी से हो, तो वो जो टिपिकल बायस होता है ना, जो स्टडी भी किया जाता है आजकल के कल्चरल बायस या इथनिसिटी का बायस, वो नहीं देखा मैंने। और दूसरा जनरली पीपल हेल्पफुल थे, बोथ सीनियर्स और आपके जो इंस्ट्रक्टर्स थे और ड्रिल इंस्ट्रक्टर, वो आपके ऊपर काफी गहरा असर छोड़ देते हैं, क्योंकि यू ऑब्जर्व देम। उस वक्त आप बड़े मतलब
यंग होते हो ना, like I think I was early 20 to something, so whatever they are doing you think this is the golden standard, right? Like for example time पे आना is a big one, right? तो आई एम आल्सो वेरी पंक्चुअल, तो उधर से ही और होन हो गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा पॉजिटिव था, एक्सपोजर बहुत बड़ा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई सॉ नॉन पंजाबी, राइट? पठान तो चलो नजर आते हैं पिंडी में, कश्मीर सिंधी तो नजर नहीं आते, या लाहौर के लड़के लड़कियां लड़के मोस्टली नहीं नजर आते। फिर लेटली गर्ल्स भी आई, दे केम इन फ्रंट ऑफ अस, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था द को एजुकेशन का, विच वी ऑल एमसी में तो था ही, लेकिन जो बाकी मिलिट्री इंस्टीट्यूट थे उसमें फर्स्ट टाइम TCC 7 के साथ BSc 1 वाली आई। तो ओवरऑल इट वाज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। आई थिंक इट वाज अ प्लेस टू गो एट दैट टाइम एंड इट वाज फन। अच्छा, आप तो माशाल्लाह सबसे ही कनेक्टेड हैं, तो आई थिंक आपसे मैं क्वेश्चन ना ही पूछूं कि आप फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं, बट आई वुड लाइक टू आस्क इफ यू वांट टू गिव अ शाउट आउट। आपने काफी लोगों का मेंशन किया ऑलरेडी, बट स्पेशली जो आपको कॉज में हेल्प करते रहे, एज अ फ्रेंड पर्सनल लेवल पे आपके साथ रहे, किसी को आप शाउट आउट करना I'll take few minutes. I don't want to miss anything, but we'll start. Let me see. I think Sir Zulfikar Mehndi TCC 1 के, सर नबील, फिर सर रजा TCC 3 के, सर उमर, सर मंसूर TCC 4 से, मेरे कोर्समेट जुल्करनैन, असद तरीन, 6 से अबू बकर अलियास, इर्तजा, 7 से ऑब्वियसली हमारा जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमार, खुरम मखदूम, TCC 8 के क्या नाम है, फरोख मंजूर, 9 में काशिफ, वहाब, आई मीन आई विल मिस समथिंग, फिर मदिया, फादिल, ताहा, शामिल, तलहा, ऑन एंड ऑन। आई मीन देयर इज अ होल आर्मी, राइट? देयर इज नॉट वन पर्सन। हमें लकीली चांस मिला कुछ मुझ जैसे लोगों को टू बी अ स्पोक्स पर्सन इफ यू विल, राइट? लेकिन जो फाउंडेशन थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एंड इट वाज सेल्फलेस, राइट? एंड आई वाज माई सेल्फ अमेज्ड इवन टू डेट, बोथ सिग्नेलियंस, फिर नस्ट अलुमनाई एसोसिएशन और नस्टिन के कॉन्टेक्स्ट में, कि it was mind boggling कि how people are able to give so much even when they are not paid. हमें तो मसला होता है जो जिनको हम पैसे दे रहे हैं उनसे काम लेना बड़ा मसला होता है being a manager, लेकिन ये they are always helping around the clock. And I don't think so there was a day not spent not helping anyone. Pretty much I can very calmly say, confidently sorry, कि since 2001 every day was spent either by me or these people to help other in some context. So it's consistent. ये नहीं कि हमने एक दफा हेल्प की तो बस फिर बैठ गए. It's pretty much राउंड द क्लॉक 24/7 है. समटाइम हमारी जो अपनी स्पाउसेस हैं वो भी कहती है तुम किससे बात कर रहे हो लेट नाइट. शुरू में होता था, मैंने कहा या यू कैन लिसन इनटू नजर आ जाएगा, देन यू विल नॉट कम बैक बिकॉज़ लेट नाइट पाकिस्तान में है ना, मार और मंसूर टिपिकली दैट्स व्हाट. तो ग्रेट वो जो बात करते हैं ना कि टीम बिल्डिंग या हाई परफॉर्मिंग टीम्स, वो यही है. दिस इज व्हाट इट इज. तो माशाल्लाह यू बीन वेरी ब्लेस्ड कि एक तो इस तरह भी ब्लेस्ड कि आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी यूज कर रहे हैं, प्लस ये कि आपको इतने ज्यादा हेल्पफुल लोग मिल गए. सो आई एम वेरी ग्लैड कि आज के इंटरव्यू में मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो है उसे भी पता चलेगा कि किस लेवल पे कितना काम हो रहा है आप जैसे डेडिकेटेड लोग हैं उनके साथ. और नाम नस्टिन यूएसए से भूल गया, वो उनका भी है. उसमें जो नस्टिन यूएसए डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा फोकस पहले कॉलेज ऑफ सिग्नल्स था जहाँ से मैं हूँ. फिर जब नस्टिन यूएसए बनी, इसमें 18 स्कूल जिसमें सारे नस के स्कूल सारे इकट्ठे आए, तो मुझे यही हमेशा से प्रॉब्लम थी कि दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग बिकॉज उनको तो नहीं मैं जानता, राइट? मेरा तो इन्फ्लुएंस MCS में है और लिटिल बिट EME कह लो, लेकिन वहाँ सर तैमूर डार हमारे जो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी ट्रस्टी हैं. फिर मारिया रियाज VP अलुमनाई रह चुकी हैं, फीमेल की जो थी. उसके बाद एहसन जो रहमान अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, शोहेब हैदर ओवर ट्रेडर. उसके बाद सर राशिद, राहिल बोदला फ्रॉम CAE, सर राशिद EME से. और उसके बाद 60-70 के करीब वॉलंटियर हैं. I'm gonna forget their names, so I'm not gonna say all of them. Communication team, fundraising team, website team, on and so we made it an organization, fully robust organization है. और इस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने ये एहसन बना प्रेसिडेंट, तो दिस ईद रमजान जब स्टार्ट हुआ, they raised around $200,000 within 7 weeks. राइट, उसी कॉन्टेक्स्ट में स्कॉलरशिप वाली में. तो इससे पता चलता है कि पोटेंशियल कितना स्ट्रॉन्ग है.
इट्स नॉट जस्ट शिराज, जो नई हमारे नई लीडरशिप टीम है वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग है। VP एलुमनाई जो नई अनम, शी इज वेरी इंगेज्ड, वो भी फोकस किया कि फीमेल के ऊपर एक डायरेक्ट फोकस होना चाहिए, क्योंकि उनके अपने चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, जॉब दोबारा आना चाहती हैं, बच्चे वगैरह, तो एम्प्लॉयर समटाइम वो नहीं इनको देते, ऑन एंड ऑन। तो वो हमने सारा स्ट्रक्चर बना दिया। तो दिस इज अनदर, It's 9 o'clock. ग्रेट टीम। जी जी सर, बिल्कुल, माशाल्लाह, गुड टू नो। ये सब लोग आपके साथ हैं, इनमें से कुछ को मैं पर्सनली जानती हूँ, कुछ को नहीं जानती, बट वेरी गुड टू नो कि माशाल्लाह दे आर डूइंग सो मच, और हमारी सब विशेष उनके साथ हैं, और जितना भी हम उनको कभी भी किसी भी लेवल पे हाईलाइट कर सकेंगे और जितना भी हेल्प कर सकेंगे, इंशाल्लाह देयर फॉर यू। और वापस आते हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि आप बड़े पॉपुलर हैं माशाल्लाह, तो नाउ वी नो व्हाई, और वेरी प्राउड ऑफ यू, द होल नस्ट इज वेरी प्राउड ऑफ यू। एक दफा फिर आपके टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। आई रियली एंजॉयड टुडेस इंटरव्यू बिकॉज आई थिंक हमारा फोकस बड़ा डिफरेंट था और बहुत लर्निंग वाला था। सो थैंक यू सो मच सर, आई होप यू डू हैड अ गुड टाइम। Thank you very much, Sana, and thanks to you and Rida and entire team for doing this. This is great, much appreciated. Shukriya. Thank you. Thank you everyone for watching. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.